College for Women and St. Mary's Group of Schools. She has completed her UG, PG, MPhil from the Department of Applied Psychology and Behavioral Research from JBAS College for Women. She did her postgraduate diploma in learning disability from the Institute of Career Excellence. She is doing her PhD program in the Department of Sports Psychology, Tamil Nadu Sports University. She has got membership. No. Yes. Shall I start? You can continue from where you were. It was already getting recorded. Yeah, okay. She has been invited for many talk shows such as Joe's Talk, Adhan Tamil on the advantages and disadvantages of using TikTok, Talk on Mental Health by the Association of Indian Psychologists, etc. She had been a resource person and conducted more than 100 training programs from the year 2016 till date for students, parents, teachers, and many government private schools in Chennai, Velur, Andhra Pradesh, Coimbatore, Bhaktal, Gujarat, etc. She had conducted psychodiagnostic assessment camps like intelligence test, career guidance test, etc. in different schools in Chennai. Her passion is to completely contribute herself in teaching orphans, children from low socioeconomic status, and differently abled children. She has been also recognized and receiving many awards. To name a few, the Best Educationist Award, Dr. Abdul Kalam Award 2020, Iconic Personality of India 2019 for Education and Social Work category, Best Teacher Award on International Teachers' Day celebration by Lions Club of Mylapore. She has also been appreciated by Lit the Light Trust for arranging scribes. Thank you for accepting our invitation, Sister Alima. May I now request our esteemed speaker for the day to take over the session. Assalamu alaikum and a very good evening to all the participants. Before I start, I want to thank the group of young girls from Chennai, Voice of Bibi Zainab, for giving me this opportunity. I have done many sessions, but this session especially, it's very, very special to me. It's very close to my heart because I'm doing it under the banner of Bibi Zainab. So thank you, Habiba and team, for this opportunity. Usually, I will be using... yes. यूजुअली मेरे प्रोग्राम्स में हमेशा इंग्लिश एज वेल एज हिंदी बाइलिंगुअल दो भी लैंग्वेजेस बात करती हूँ एंड यूजुअली प्रोग्राम्स आई स्टार्ट विद स्मॉल स्टोरीज okay the main theme is the women empowerment through skills and life skills development, but I want to begin with a small story. This story is about a small girl. एक लड़की है, वो लड़की नॉर्मल लाइफ जीती है, जो स्कूल जाती है, माँ बाप के साथ रहती है. ओके, बिकॉज जो भी स्टोरी है प्लीज ठीक से समझे, ठीक से सुने, सो दैट यू नो जो भी टॉपिक है उसमें आप लोग को कनेक्ट कर पाएंगे. आई एम गोइंग टू टॉक फॉर लाइक 40 मिनट्स. उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. तो लड़की जाती है, स्कूल जाती है, नॉर्मल स्कूल पढ़ती है, उसके फ्रेंड्स के साथ बहुत खुशी खुशी रहती है. एवरी यंग स्टूडेंट, एवरी यंग गर्ल, उसके भी बहुत सारे वो रहते हैं, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. देन वो 10th कंप्लीट करती है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते हैं लड़की को. देन कैसे भी करके माँ बाप थोड़ा तकलीफ करके, मेहनत करके, पैसा थोड़ा थोड़ा जमा के उससे उसकी स्कूल की लाइफ, उसकी स्कूल एजुकेशन में बहुत सारे हेल्प करते हैं. यूजुअली आप मूवीज देखेंगे ना, हर एक मूवी जब अच्छे से जाती है तो कुछ ना कुछ ट्विस्ट आता है, एक ना कुछ नेगेटिव इवेंट होते हैं जो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाते हैं. In same way, the protagonist of the story is she was a victim of a very big problem. वो प्रॉब्लम क्या था? She always used to compare her life with others. Always used to compare her achievements with others. यही वो लड़की का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था. वो बाहर नहीं आ सकती थी. 10th में भी ऐसा था, 12th में भी हमेशा जो जब भी वो कुछ आगे बढ़ती थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लेके वो कंपेयर करने शुरू करती थी. इवन उसके लाइफ में कुछ सक्सेस आती तभी भी वो लड़की बहुत सारा कंपेयर करने लगती थी. ऐसे उसका स्कूल एजुकेशन खत्म हुआ. देन शी एंटर्स इनटू कॉलेज. कॉलेज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हम भी जब स्कूल से लेकर निकल के कॉलेज में आते हैं, बहुत सारे एक न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स रहते हैं, हमारा एक न्यू एनवायरनमेंट होता है, हमारे अपने होप्स अलग रहते हैं, एक्सपेक्टेशन लाइफ में भी बढ़ जाते हैं हमारे. जब हमारे हम अपने सेल्फ वर्थ पर, सेल्फ टेस्ट पे बहुत सारा कॉन्सेंट्रेट करते हैं. इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं हर एक इंसान के, और इसके बहुत सक्सेस जाती है पढ़ाई. और ये टाइम पे भी कॉलेज लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, फाइनेंशियल इश्यूज थे, बट स्टिल उनके माँ बाप ने लोन लेके उसकी पढ़ाई कंप्लीट कर दी.
यहाँ भी सेम प्रॉब्लम था, जितना भी आगे बढ़ो बट फिर भी वो दूसरों के साथ कंपेयर करने लगती थी। जब हम लोग 99% होत लेते हैं तो एक मार्क काम पे हम लोग थिंक करने लगते हैं इन सेम वे, बट बॉयज देखो बहुत आराम से पूछते रहते हैं, बट लेकिन बच्चे भी बहुत, लेकिन मोस्ट स्पेशली गर्ल्स बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव रहते हैं, तो हमेशा कंपेयर करने लगती थी। देन उसका कॉलेज लाइफ हो जाती है। देन यूजुअली होता है ना कि कॉलेज खत्म होने के बाद ग्रेजुएशन आने के लिए एक कम से कम 1 साल तो होता है। जब उसकी लाइफ में उसका ग्रेजुएशन डे आता है, उसके बाद वो पढ़ाई के बाद कुछ काम नहीं करती है, वो घर पे रहती है। देन उसके ग्रेजुएशन डे उसके पूरे फ्रेंड्स के साथ मीट करती है, तब वहां पे बहुत बड़े चेंजेस देखती हो अपने फ्रेंड्स के पास। एक लड़की बोलती है मैं कनाडा में सेटल हो गई, एक लड़की बोलती है कि उसकी शादी हो गई अच्छे रिच गाय से, और एक लड़की बोलती है मैं ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गई, एक लड़की बोलती है मैं न्यूजीलैंड में हूँ, एक लड़की कहती है कि मैं अच्छे बिजनेस, मेरे माँ बाप के बिजनेस में मैं हेल्प कर रही हूँ, और बोलती है कि मैं एक अच्छे हायर एजुकेशन कर रही हूँ, मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में। हर एक लड़की बोलती है कि मैं मेरी यूजी के बाद मुझे अच्छी कंपनी में मुझे जॉब मिल गई, तो मैं अच्छी आईटी कंपनी में वर्क कर रही हूँ। ऐसे सब उनकी लाइफ स्टोरीज वो बोलने लगते हैं। देन शी आस्क्स क्वेश्चंस टू हरसेल्फ, मैं क्यों ये इनजस्टिस सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, क्यों मैं क्या कुछ भी नहीं कि मैं अपने लाइफ में, तो अपने आप को फेलियर मानती है। जब वो सबको देखती है, इसका ये प्रॉब्लम ये है कि उसने जॉब नहीं की, उसका ये प्रॉब्लम ये है कि उसने हायर एजुकेशन नहीं किया है, बट उसका ये प्रॉब्लम है कि उसके फ्रेंड्स उससे आगे बढ़ गए हैं। यही उसकी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। देन क्या करते, ग्रेजुएशन डे के बाद उसके माँ बाप थोड़ा नाराज रहते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं, तो वो क्वेश्चन अपने आप को करने लगती है कि मैं क्या करूं अपनी लाइफ को लेकर, कि वो अपने आप को कंप्लीट फेलियर समझती है, वो उसके लाइफ को कर्स करने लगती है, तो उसके लाइफ को अपने आप को ना होपलेस समझने लगती है। वो ऐसे अपने आप में बोलते बोलते क्या होता है, उसके माँ बाप घर चले जाते हैं और ये लड़की वॉक करते करते एक जंगल के अंदर चली जाती है, जंगल फॉरेस्ट में एंटर होती है। अंदर फॉरेस्ट में एंटर होते होते उसके अपने फेट को कर्स करती है, अपने लाइफ को कर्स करती है, अपने गोल्स को कर्स करती है। बेसिकली अपने आप को ना वो इतना एक नेगेटिव रोल से अपने आप को देती है, उसका सेल्फ वर्थ कंप्लीटली वो स्मैश कर दिया, उसका जो सेल्फ एस्टीम है अपने आप को एकदम वो अपने आप एकदम वो कंप्लीटली वो डाउन फील करने लगती है। वो एंटर होती है फॉरेस्ट में, एंटर होके जाके ब्रांच में बैठ जाती है, जाके इतना रोने लगती है ऑलमोस्ट 1 आवर, शी स्टार्ट्स अपने आप से रोती है और अपने आप से कुछ ना कुछ बोलने लगती है नेगेटिव वे में। देन ऑल ऑफ अ सडन व्हाट हैपेंस इज पीछे से वो लड़की के पीछे से आवाज आती है, और पीछे से आवाज आती है, वो अपने आप को अस्यूम करने लगती है कि मेरे से खुदा बात कर रहा है, गॉड इज टॉकिंग टू मी। दो आवाज को सुनती है, अपने आप को फिर बात करने लगती है, तो आवाज बोलते हैं कि माय डियर गर्ल डोंट क्राई, okay, just look around yourself and you will find answers to all your questions. Okay, just look around yourself, you will find answers to all your questions. अपने आप को देखो, अपने आप, तुम एक फॉरेस्ट में बैठी, तुम एक जंगल में बैठी हो, अपने आप जो भी है, जो भी पेड़ पौधे जो भी, अपने आप को देखो, अपने आप को कंपेयर करो, अपने आप को वहां पे कंपेयर करो, तुम्हें तुम्हारा सबका आंसर्स मिल जाए, तुम्हारे सब क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। तो वो चौंक जाती है, कैसे हो सकता है, पेड़ कैसे मेरे से बात कर सकते हैं, पेड़ कैसे मेरे से मुझे पूरे आंसर्स देंगे। देन अगेन वो आवाज आती है, बोलता है कि अपने आप को देखो, अपने आप को बाजू जो भी है देखो, और पूरे तुम्हारे आंसर्स मिल जाएंगे। देन वो देख के बोलती है कि मेरे बाजू तो इतना बड़ा पेड़ है, बहुत सारे ट्रीज हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ये पेड़, उसके बाजू उसके राइट तरफ एक बहुत बड़ा एक झाड़ रहता है, एक 4 to 5 meters लॉन्ग झाड़ रहता है, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे फूल हैं, और एक पेड़ है वहाँ पे इतने प्यारे फ्रूट्स लगे हैं, और उसके लेफ्ट साइड देखेंगे छोटा सा एक पौधा है जो बड़ा नहीं है, जो उसके रूट से कुछ अंदर है बट वो बड़ा नहीं है। और आवाज बोलते हैं कि तब अब तुम मुझे जवाब दो, कौन तुम्हें यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, कौन तुम्हें यहाँ पे बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है। तो लड़की बोलने लगती है कि ऑब्वियसली कोई भी लड़की को पूछेंगे तो कौन सक्सेस दिखेगा, इतना बड़ा पेड़ है, बहुत सारे फूल हैं, कलरफुल फ्लावर्स है, ऑटोमेटिकली हमें ये लगेगा कि यही बहुत बड़ा सक्सेसफुल है। वो बोलते हैं कि यही प्रॉब्लम है हम लोगों को। अब भी बोलते हैं कि वो पेड़ के साथ तुम्हें अपने आप को कंपेयर करो। वो बोलते हैं, वो आवाज जवाब देते हैं कि जब ये जंगल में स्टार्ट की, जंगल जब यहाँ थी, जब कुछ भी नहीं था, बट मैंने यहाँ पे इक्वल सनलाइट दी, सबको इक्वल सनलाइट दी, सबको इक्वल वाटर पानी दिया था, सब चीज जो जो जरूरत है पेड़ के लिए मैंने सब चीज दिया था। बट स्टिल देखो, थोड़े पेड़ ऐसे होते हैं कि इतने बड़े बन गए, और थोड़े पेड़ ऐसे हैं कि जो बड़े नहीं है। स्पेशली इफ यू टेक बैम्बू वैरायटी, वो बैम्बू में भी आपको चाइनीज वैरायटी देखेंगे ना, आप फॉर एग्जाम्पल आपका एक बहुत बड़ा गार्डन है, आप वहाँ पे बैम्बू, चाइनीज वैरायटी का जो बैम्बू है ना, वो आप घर पे पेड़ ओके कर रहे हैं,
तो आप देखेंगे years and years लगता है वो बढ़ने के लिए। उसका जो रूट है, उसका जो रूट जब बहुत स्ट्रांग होता है, उसका रूट जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, जो बैम्बू है कि आप 3 साल 5 साल 6 साल देखते रहेंगे ना, वो झाड़ बढ़ेगा ही नहीं। बट ओवरनाइट एक मैजिक की तरह होता है कि एक रात में इतना टॉल बनता है, वो 90 फीट ऊंचाई पे जाता है। ओके, तो आवाज देता है कि ये बोलता है कि तुम्हें आगे इतने लोग दिखेंगे कि बहुत ऊंचाई में चले जाते हैं, थोड़े लोग नीचे ही रहते हैं। बट यही है लाइफ, यही टाइम, हर इंसान का हर एक टाइम आता है। ओके, सो यही है, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर रूट्स। अब हवा मार रही है, हवा मारेंगे ना तो बैम्बू कितना भी हवा आ जाए ना, बट बैम्बू ट्री जो है आपको गिरेगा नहीं, बट वही दूसरे ट्रीज जो है आपको गिर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड जो भी हम पे देख रहे हैं, this is what the life is. हमारा जो self worth है ना, if you want me to talk on women empowerment, then you need to focus on your self esteem. Okay, self esteem is nothing but where you are evaluating yourself. You're positive, you're making positive and negative evaluation about yourself. You need to know what are your strengths, you need to know what are your weaknesses. जब तक आप अपने positivity and negative, आपकी जो भी strengths and weaknesses को जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आप उस पे गौर नहीं करेंगे, तब तक अपने आप में changes नहीं आएंगे। And first thing for women empowerment is nothing but you're raising the standard of women through what? Through education, through literacy, through skill development, through training program, internship program. अपने आप को बिजनेस में बढ़ा रहे, जो कुछ भी हो, अपने आप सेल्फ वर्थ इज नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट। वो सेल्फ वर्थ के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ना, यू नीड टू स्ट्रेंथन योर रूट्स। स्ट्रेंथनिंग योर रूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लाइफ में हमेशा ना, I always tell this to my students, हमारे लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि खुदा हमें सब कुछ दे देता है। That time you should never feel proud about yourself. एक टाइम ऐसा आएगा हमारे लाइफ में, अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। अच्छे दिन भी आते हैं जब ऐसा होता है कि खुदा तुम्हें और आगे अच्छी ऊंचाई चीज पे पहुंचा देगा। जब उस टाइम पे नेवर फील प्राउड अबाउट योरसेल्फ, वो प्राइड नहीं आना चाहिए अपने आप में। ओके, बी डाउन टू अर्थ, बी ग्रेटफुल टू गॉड, बी ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। ओके, और एक टाइम ऐसा आएगा जो तुम्हारी लाइफ तुम्हारे अगेंस्ट होगी, उस टाइम सब्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज तुम्हें आएगा, बहुत सारे लोगों में देखी हूँ कि एक टाइम ऐसा करे कि उनके पास सब कुछ होता है, बट उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, उनके लाइफ में फेलियर्स भी आते हैं। सो दैट टाइम वी नीड टू हैव पेशेंस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन एस्पेक्ट ऑफ माय स्टोरी, ऑफ दिस स्टोरी में ये बोलती हूँ कि हमारा जो नजरिया है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है, लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। सी देयर आई ऑपरेशन के लिए आपको ट्रीटमेंट है, आंख के प्रॉब्लम के लिए आपको ट्रीटमेंट, इफ यू हैव कंजंक्टिवाइटिस और इफ यू हैव एनी कैटरैक्ट इशू और इफ यू हैव एनी इन्फेक्शन इन योर आई, आपको हर एक चीज का ट्रीटमेंट है। बट आपका नजरिया, the way you see yourself, the way you see your family, the way you see your life in a positive way, हमारा पर्सपेक्टिव जो है हमारे लाइफ का, that you need to change. Okay, तो वो का उसका ये नहीं था कि उसका जॉब नहीं, उससे ये नहीं था कि उसके माँ बाप ने उससे लोन लेके इतना पैसा खर्चा किया, उसका ये था कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। You keep comparing yourself, यही प्रॉब्लम बहुत सारे लड़कियों में है, जितनी वो फिर भी वो अपने आप को कमजोर समझते हैं। When you keep comparing yourself, then अपने आप अपनी एक satisfied life, meaningful life कभी नहीं जी पाओगे। जो कुछ भी है, be grateful, वो आगे बढ़ रही है, be thankful to her, keep motivating her, वो आगे बढ़, तुम्हारी फ्रेंड आगे बढ़ रही है। Usually होता है ना, we always keep expecting things, ये सोचते हैं कि हमें सब लव करना है, हमें सब केयर देना है, सब लोग हमें रेस्पेक्ट करना है। अगर आप अपने आप को रेस्पेक्ट, अभी ये सब आप सोच रहे हैं ना, फर्स्ट यू गिव दिस टू अदर्स, फर्स्ट यू लव अदर्स, फर्स्ट यू रेस्पेक्ट अदर्स, फर्स्ट यू केयर फॉर अदर्स, फर्स्ट यू मोटिवेट अदर्स। जब आप दूसरों को हेल्प करोगे, जब आप दूसरों को मोटिवेट करोगे ना, सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जब आप एक कदम आगे बढ़ोगे तो खुद आपके साथ 70 कदम आपके खुद आपके चेंजेस डालेगा। So this is the first part of my session, that is about the story. I hope आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से। The second thing I want to share from my personal experience, जब मैं मेरा पीजी कर रही थी, I think मैंने 2 सेशंस में मैंने ये स्टोरी मैंने किया, शेयर किया है। ये स्टोरी बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। I did MPhil from Department of Psychology from JBS College Chennai. अभी मैं PhD कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 1 year is over और 2 years है। When I was doing my PG program, second term, जो MPhil program था, as a part of my MPhil program, I had to conduct a lot of training programs, research करना था मुझे। तब उस टाइम पे मेरी जुड़ी ने मुझे बुला के बोला था कि आलिमा, you have to do a training program, you have to do a research। वो बोले कि training program you have to do it in schools and colleges।
I immediately start searching for schools. मैंने एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में मुझे परमिशन भी गई थी वहाँ पे करने के लिए. Then मैंने प्रिंसिपल से जाके मीट किया था वो स्कूल के. Then she told me after 2 weeks उन्होंने मुझे बुलाया था प्रोग्राम करने के लिए. Then again the very next day I went and told this to my HOD ma'am, Dr. Vahidam. I feel so happy to to take her name. May Allah bless her. तो उन्होंने बोला कि अलीमा, don't go to a private school, go to a government school. कॉर्पोरेशन स्कूल्स वैसे होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होते, वहाँ के बच्चों को प्रोग्राम्स, वहाँ पे इंफॉर्मेशन नॉलेज, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होते, उनका स्किल्स डेवलपमेंट ना बहुत कोई वहाँ पे प्रोग्राम्स बेसिकली नहीं करते हैं. Then I asked her, what is the next step, ma'am? What should I do for to get permission from government? So she told me, go to Ripon building. It's in Chennai लोग को पता होगा Ripon building, white building है. तो वहाँ पे एजुकेशन ऑफिसर को जाके तुम्हें परमिशन लेना. देन इमीडिएटली द वेरी नेक्स्ट डे आई वेंट टू रिपन बिल्डिंग अलोंग विद फ्रेंड्स. देन मैं वहाँ पे जाके एजुकेशन ऑफिसर को वेट करती गई. यूजुअली वो होता है ना गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उन्होंने बोलते हैं कि आज जाओ, कल आओ, मीटिंग में है, सर बिजी है, सर खा रहे. ऐसे एक दिन हुआ, 1 वीक हुआ, 2 वीक्स हुए, ऐसे 3 वीक्स हुए, 28 डेज तक मुझे वहाँ पे वेट करने के लिए बोले थे. वहाँ पे आई मीन घर जाती थी, आती थी, घर जाती थी, आती थी, कॉल करती थी, बट प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी. वहाँ पे वो लोग से बात करने नहीं होता था. Then 28th day I went and met the education officer. He was so happy, to see a group of girls who are coming as a volunteer, because there are many people who are very commercial, पैसों के लिए करते हैं, बट थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जो सर्विस के लिए करते हैं. तो he was very happy, he was very glad to meet us. वो एक 4 to 5 कुछ दे दिया था. फिर वो बोला कि बेटा तुमने बहुत वेट किया होगा 1 o'clock. मैं बोली सर मैंने आज 1 o'clock तक मुझे 27 डेज तक मुझे वेट किया गया था, वेट कराने रखे थे. तो he called the person, he started shouting at him. वो अलग मतलब. then immediately the very next day I went to the school. first school में गई थी. I met the headmistress. वहाँ पे headmistress होते हैं corporation schools में. she gave me 12th standard. I was so happy. okay, 12th standard because usually 12th नहीं देते हैं ना, तो 12th standard students मुझे दे दिए थे 12th standard A section. तो मैं बोली मैम मैं आज से शुरू कर दूंगी मेरा प्रोग्राम. I was वो टाइम पे ना जोश रहते हैं, एंथू होते हैं हम लोग प्रोग्राम करने के लिए. Then I went to this class 12. I still remember 12A and B, दो sections थे. 12A में गई थी. और जब वहाँ पे अंदर एंटर हुई तो a group of girls were eating lunch. फर्स्ट रो में बैठ के खा रहे थे. वहाँ पे क्लासेस ठीक से चल रही थी. अभी क्लासेस लेना शुरू कर दिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट उस वक्त वहाँ पे उतने क्लासेस नहीं चलते थे. हार्डली 2 to 3 आवर्स चलते थे वो लोग के. और टीचर्स एक लड़कियां बैठ के गाने गा रहे थे, एक ग्रुप लड़कियां बैठ के ना वो ये डालते ना कई की तरह वो पेपर बना के फेंकते ना, एक छेड़ रहे थे. और थोड़े ऐसे भी लड़कियां थे जो फर्स्ट रो में बैठे पढ़ रहे थे. आई सॉ वन गर्ल, फर्स्ट रो में एक लड़की बैठी थी. मुझे वो लड़की को देख के मुझे आंख में पानी आ गया. मुझे आई बिकेम वेरी इमोशनल just by looking at the girl, just by looking at the girl. Then मुझे अभी भी मुझे वो लड़की की सूरत मुझे अभी नजर आ रही है. तो लड़की जब देखी थी, her face was completely burned. उसका सूरत, उसका सर से लेके घुटने तक उसका पूरा जला हुआ था, पूरा राइट पार्ट. उसके ना आंख में उसकी जो प्यूपल है ना, हमारा वो जो ब्लैक पार्ट ऑफ द कलर पार्ट ऑफ द सिर्फ वो जला था, पूरा कंप्लीटली बर्न हो गया था. देन मैंने पोलाइटली मैंने उसे बाहर लेके आई थी. उसे लेके आके पूछी क्या हुआ तुम्हारे, बिकॉज आई डिडंट वांट टू फील वेरी एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर्स. तो मैं बाहर लेके आके उससे पूछने लगी. एंड हियर जब भी आप अपने लाइफ में किसी को आप देखेंगे कोई तकलीफ में है, उनको जब वो इंसान तकलीफ में है ना, आप उन्हें चार के सामने मत पूछो क्या तकलीफ है. If you really want to do something for that person, if you really want to help that person, just call her out somewhere or talk to her over phone या मैसेज करके पूछना, या जब भी वो अकेले रहेंगे तब उस टाइम पे पूछना. दैट इज आल्सो वन एस्पेक्ट मैंने ओके जब वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं वो लोग. देन आई कॉल्ड हर आउट. बाहर लेके जब लड़की के पास पूछी तो मैं बोली कि कैसे होगा. तो बोली लड़की, मेरे बाप ने एक फुल बॉटल एसिड लेके आके मेरे फेस पे फेंके. पूरी एसिड फेंके ना, जब मेरे फेस पे एसिड, वो पूरी एसिड पूरा रोल करके मेरे घुटने तक आई. आई वाज रोलिंग ऑन द फ्लोर एंड नोबडी वाज देयर टू टेक मी टू द हॉस्पिटल. इतना चीखे. मेरे नेबर्स थे, बाजुक थे, बट वो लोग नहीं है, बिकॉज मेरे फादर ने fully alcohol consumed थे. Fully he was completely drunk and nobody was there to take me to the hospital. Then after 1.5 hour कोई उनके 2-3 घर पास जो neighbors थे उसे हॉस्पिटल लेके गए थे. She was like 99% burnt. ओके बहुत बड़ा बुरी तरह से उसका फेस जला हुआ था. देन मैं पूछी ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे फेस पे एसिड डाले थे. शी से मैं खाना पका रही थी, खाने में नमक डालना भूल गई थी, तो इसीलिए खाने का मजा नहीं आ रहा था, तो इसीलिए एसिड खा के फेंक दिए थे.
तो मैं पूछी उससे, कैसे तुम मैनेज कर रही हो, तुम स्कूल में हो, तुम 12th में पढ़ रही हो, इतनी छोटी हो तुम, कैसे घर में पका क्या रही हो, एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट, एजुकेशन को भी तुम इम्पोर्टेंस दे रही हो, घर पे आके तुम पूरा काम कर रही हो, स्कूल को आ रही हो, रेगुलर हो। तो शी टोल्ड दैट शी इज रेगुलर टू स्कूल, इसीलिए मैं बोली तुम रेगुलर कैसे मैनेज कर पाती हो। देन शी सेड शी यूज्ड टू वेक अप एट 5। वो बोली कि सिर्फ ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे घर में नहीं है, आप कोई भी लड़की ले लो दी, यहाँ पे अक्का बुलाते हैं, तमिल में अक्का तो सिस्टर को बोलते हैं, अक्का यहाँ पे कुछ भी कोई भी एक लड़की को ले लो, हर लड़की हर एक प्रॉब्लम से फेस करती है, हर एक लड़की घर में प्रॉब्लम है, कोई माँ बाप मारते हैं, कोई माँ बाप उसे खाना नहीं देते हैं, और थोड़े बच्चे हैं जो भी है बहुत से स्लम एरियाज, मुझे स्लम वर्ड यूज नहीं करना है, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बहुत सारे स्लम एरियाज में ऐसे बच्चे हैं जो धूप और बारिश में भी बच्चे बाहर सोते हैं, बिकॉज फुल ड्रिंक करके आ जाता, तो उनको होश में नहीं रहते उनके माँ बाप, इवन मदर भी वो मिलकर ड्रिंक करते हैं, अपने बच्चों को बाहर सुला दें। बहुत बड़े बच्चे हैं जो यू नो मैच्योर बच्चे भी रहते हैं, एजड होके बच्चे रहते हैं, बट वो बच्चे भी बाहर सोते हैं, वो लोग को बच्चों की सेफ्टी भी नहीं देखते हैं। She told me she used to wake up at 5 o'clock in the morning, 5 to 6 o'clock बाहर जाके पूरा स्वीप करती है, बाहर रोड्स पूरे जाके कॉर्पोरेशन रोड स्वीप करती है, झाड़ू देती है, और उसे 20 रुपीज समटाइम्स 30 रुपीज उसे मिल जाते हैं, और उसके बाद वो न्यूज़पेपर कभी कभी डालती है घर में, ऑल्टरनेट डेज होता है, बिकॉज वो बच्चों का चाइल्ड लेबर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओके, बट स्टिल बच्चे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे काम कर, इंडियन पॉपुलेशन में आप उठा लो, आप इंडियन सिनेरियो, इंडिया में इतने सारे बच्चे चाइल्ड लेबर, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 6 साल 7 साल के बच्चे भी हैं, स्पेशली गर्ल्स, बिकॉज बच्चे औरत बच्चे जो है बहुत काम करते हैं, ओके, व्हेन कंपेयर टू बॉयज, तो बच्चे बहुत सारे घर का काम करना, एंड आई फील वेरी सैड टू हियर दैट लड़की एक घर पे काम भी करती है, ओके, लेट मी कंप्लीट दिस 5 to 6 o'clock कॉर्पोरेशन स्कूल में जाके कॉर्पोरेशन रोड्स को स्वीप करती है, 6 o'clock to 7 o'clock घर जाके उसे ब्रेकफास्ट करना पड़ता है। यहाँ पे ना चेन्नई में अम्मा उन्नवगम बोल के, जो 1 रुपया 2 रुपए को 2 इडली मिल जाते हैं, 1 रुपए को 2 इडली मिल जाते हैं, कभी पैसा है तो 1-2 रुपए वो लेके खा लेती है, कभी नहीं तो वो पानी और बिस्किट की पैकेट लेके स्कूल चले जाती है, देन स्कूल में जाती है 8 o'clock से लेके 4 o'clock तक स्कूल में रहती है, एंड 4 to 5 o'clock वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ती है। मैं लाइब्रेरी गई थी, वो लाइब्रेरी में नॉट मोर देन 100 बुक्स, 100 बुक्स है, फुल डस्ट, वो बुक्स में फुल डस्ट, इतने टोन कंडीशन में है, पूरे फटे हुए बुक्स में, फिर भी बैठ के अपने आप लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड करते, बोलते घर पे जाके मुझे इतने सारे बुक्स नहीं रहेंगे, बिकॉज छोटे छोटे घर होते हैं, 100 स्क्वायर फीट के घर होते हैं, एक रूम होता है, वो लोग रूम्स में एक हॉल होता है, तो एक हॉल में ही माँ बाप बच्चे पूरे एक ही जगह पे होते हैं, और एक टीवी के लिए लड़ते हैं, एक एक चीज के लिए लड़ लड़के खाते हैं, लड़ लड़के तरसते हैं बच्चे को। वो बोलते कि लाइब्रेरी इतने सारे बुक्स मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो 4 to 5 o'clock वो बैठ के बुक्स पढ़ती है, और आफ्टर 5 o'clock वो घर पे जाके बैग रखते हैं, समटाइम्स एक घर, और 6 to 8 o'clock समटाइम्स घर दूसरे घरों में जाके बर्तन धोना, घर पोछना, ये काम करती है, और ऐसे फैमिलीज में काम करके वीकली ट्वाइस जाती है, और आफ्टर 8 o'clock शी गोज बैक होम, घर पे जाके खाना बनाना, और जब खाना बनाते वक्त जब सोचो कितना मेंटल स्ट्रेस होगा उस लड़की को, कितना टेंशन होगा उस लड़की को, और इवनिंग घर पे जाना 8 बजे के बाद खाना पकाना, और खाना पकाने के बाद पूरा काम करना, और बाय द टाइम शी कंप्लीट्स द वर्क 10 o'clock हो जाता है। 10 इज इट क्लियर? जस्ट गिव मी अ थंब, इसमें वॉइस ऑडिबल ना? Yes, but it's not clear. Clear now? Is it clear? Yes, Di. ओके, थैंक यू। तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक पूरा काम खत्म करते घर का, 10 बजे बाय द टाइम शी कंप्लीट्स ऑल द वर्क 11 o'clock हो जाते हैं, बिकॉज उसके बाप आता है घर पे 12 o'clock, समटाइम्स 10 o'clock, समटाइम्स 12 o'clock। माँ डबल शिफ्ट में काम करती है, माँ भी घर पे आती है बहुत लेट हो रही है, इसीलिए वो घर का पूरा काम खत्म करके रखती है, और जब काम करते वक्त उसका टेंशन इतना होगा, उसके कॉलेज में भी, उसके स्कूल में भी कितना काम होगा, कितने वर्क होते हैं, होमवर्क्स भी होते हैं बच्चों को कंप्लीट करने के लिए, तो उसके दिमाग से चला गया था कि वो खाने में नमक डालना भूल गई थी, तो यही है उसकी लाइफ। ओके, एंड आफ्टर 12 o'clock वो बोली कि 12 बजे के बाद मैं वहां पे घर पे करंट नहीं होता है, बिकॉज वो लोग ईबी बिल पे नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट जो भी ऑफिसर्स आके फ्यूज लेके चले जाते हैं, और घर पे करंट नहीं होता है, एंड आफ्टर 12 o'clock शी यूज्ड टू गो सिट अंडर द स्ट्रीट लाइट्स एंड स्टडी, एंड शी इज द क्लास टॉपर। उसने 10th में टॉप किया था, उसमें 11th में टॉप किया था, 12th में बोलती है कि मैं स्टेट लेवल रैंक मुझे लेना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल रैंक मुझे लेना है, मुझे और आगे बढ़ना है।
वो बोलते कि दीदी मुझे डबल डिग्री खत्म करना है, मुझे एजुकेशन है कुछ ना कुछ, अपने आप के लिए कुछ ना कुछ करना है, मेरे माँ बाप के लिए कुछ ना कुछ करना है। उसके माँ बाप ने इतना सारा तकलीफ दिया, उसकी माँ भी कुछ नहीं बोली बिकॉज शी इज ऑल्सो हेल्पलेस, ओके, कुछ नहीं कर सकी। उसके बाप इतना, वो बोलती है कि मुझे एक अच्छे कंपनी में काम करना है जहाँ पे एसी हो। उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो बोलती है कि एसी में बैठ के काम करना है, मुझे एक अच्छी कार लेना है, मेरे माँ बाप को कार में बिठा के मुझे राइड पे लेके जाना है। यही है what I'm trying to tell you here is, you compare, okay, sky is the limit, dream big, but हमारा कंपैरिजन ऐसा होना चाहिए कि जब always compare your life with people who are down to you। कितने सारे लोग, कितने सारे बच्चे हैं जो स्ट्रीट्स में पढ़ते हैं बट फिर भी वो लोग कॉर्पोरेशन स्कूल्स में जाते हैं। यू टेक एनी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत सारे IAS एंड IPS ऑफिसर्स के स्टोरीज आप सुनोगे ना, ओके, लीव अबाउट पीपल हु आर फ्रॉम हाई सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, उनके पास तो पैसा होता है, उनके माँ बाप बिजनेस में होते हैं। इफ यू when you compare yourself, don't compare yourself with people who are higher to you। उनके पास सब चीज है, एवरीथिंग रेडीमेड है, घर पे आते हैं तो ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, घर पे आते हर एक चीज खाना खाते हैं। बट कंपेयर योरसेल्फ, हमारा लाइफ तब भी चेंज होती है व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद पीपल हु आर डाउन टू अस। वहां पे तो कितना तकलीफ में है वो लोग, ओके, वो लड़की का कंपेयर करो। एंड जब मैं प्रोग्राम्स करती हूँ, मैं जब ऑर्फनेजेस, ओल्ड एज होम्स में जाती हूँ ना, जब ऑर्फनेजेस को स्पेशली जाती हूँ ना, दे डोंट हैव एनीथिंग इन देयर लाइफ, नो फादर, नो मदर। उनके पास ना एक फेस्टिवल्स जब भी आते हैं, वो लोग जब दिवाली या क्रिसमस या पोंगल, रमजान जो भी सेलिब्रेट करते हैं, साल में एक बार कपड़ा पहनते हैं, हमेशा टोन कपड़े, फटे हुए कपड़े में भी आप देखो ना एक अच्छी स्माइल देंगे वो लोग। Okay, when you ask them what do you want in your life, they will tell you दीदी just आओ, हमें सिर्फ बात करना है। इमोशनली बहुत इमेच्योर है बच्चे, उनको क्या करना लाइफ में पता नहीं है। दिस इज what I'm trying to tell you here is compare your life with such people, keep upgrading yourself, take the same girl's example, upgrade yourself। आज के बच्चों के जमाने में आप देखेंगे ना, if you tell your हमेशा होता है ना, हर माँ बोलती है बच्चों को ये पढ़ो वो पढ़ो, स्कूल बुक्स पढ़ो। जब आप अपग्रेड नहीं कर, जब आप नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप कैसे बच्चों को बोल सकते हैं? आज के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं। उस टाइम के जमाने में, इवन मेरे जनरेशन में भी क्या होता था, हमारे टीचर्स को देखो इतने ग्रेटफुल रहते हैं हम लोग, जो भी वो बोलो अच्छा खामोश, हाथ में हाथ मिला के जो भी वो बोलो सुन लेंगे। बट आजकल के बच्चे रेस्पेक्ट है बहुत सारे बच्चों में, बट बच्चे आजकल नहीं सुनेंगे। वो ना रोल मॉडल की तरह, रोल मॉडल उनको देखते हैं जो कुछ अच्छा करेंगे ना, तभी उनका एग्जाम्पल ये करेंगे। जब आप कुछ भी नहीं करेंगे, वो सिर्फ वो क्या बोलते हैं, घर पे हो। यहाँ पे 3 अलग अलग क्लस्टर्स में देना चाहूंगी। ओके, देयर इज one group of girls who had completed their education, और वो लोग जो है काम को जा रहे हैं, घर को आ रहे हैं और अपनी लाइफ अच्छे आराम से लेके जा रहे हैं। और एक ग्रुप है वो जो घर पे है और ट्यूशंस लेते हैं, अपने आप को ऑक्यूपाई करके रहते हैं। एंड वन मोर ग्रुप इज देयर, ओके, अच्छी पढ़ाई है, अच्छा एवरीथिंग दे हैव, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट होम। Okay, usually what happens is the third type of people, what did they always regret in their life? वो कब, अब नहीं, अब कुछ भी मालूम नहीं होगा आप लोग को, अब मालूम होगा तो आफ्टर 6 years, आफ्टर 7 years, when you see your friends, when you see your cousins, जब वो लोग बोलेंगे तो मैंने ये किया, मैंने वो किया, तब वो टाइम में सोचेंगे कि मैं हमेशा मेरे बच्चों के पीछे रह गई। बच्चों के साथ रहो, that is your first priority, but at the same time upgrade yourself with something, some knowledge। There are so many courses which are really free, it is completely free of cost। Okay, do something, and if you don't want to work, it's okay, I'm not compelling you, I'm not, women empowerment is something you need to raise yourself, raise yourself through education or development, skill development or literacy rate। आप if you really want to do something, आपके मोहल्ले में ही देखो ना, आपके स्ट्रीट में कोई ना कोई एक बच्चा तो होगा जिसे आपकी बहुत सख्त जरूरत होगी। I'm not telling you to take regular classes from Monday to Sunday, full एक 1 hour ट्यूशन की तरह नहीं, वीकली once और वीकली twice, बच्चे के कम्युनिकेशन में हेल्प कर दो, बच्चे के पर्सनालिटी में हेल्प कर दो, कुछ ना कुछ कर दो। If you really want to tell yourself that you are successful, do something in the area of education। Education is something where it will give you a lot of self-respect। अपने आप को self-respect, दूसरे लोग आपको respect देना है, not especially this education जो ऐसी चीज है ना, जहाँ पे आपके स्टैंडर्ड्स नहीं आएंगे, आपके इकोनॉमिक स्टेटस नहीं आएगा। आप कोई भी बच्चा, वो बच्चा बहुत गरीबी बच्चा हो या कोई अमीर बच्चा हो, अगर वो बच्चा एजुकेशन में कामयाब हो जाए ना, तो उसके कोई भी सोशल इकोनॉमिक स्टेटस कोई नहीं देखेंगे, सिर्फ उसका कामयाबी ही देखेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, एजुकेट अ गर्ल। गर्ल के एजुकेशन में कुछ ना कुछ आप करो।
एक बच्ची को एटलीस्ट एक सेमेस्टर में उसे हेल्प करो, एटलीस्ट वो बच्ची की एक जो साल में जो भी एक सेमेस्टर फीस है और या कुछ टर्म फीस है, कुछ एटलीस्ट एक 5,000 इफ यू आर एबल टू अफोर्ड कर सकते हैं तो एक 5,000 रुपए, या अफोर्ड नहीं सकते तो कुछ ना कुछ उसके उसे कुछ क्लास ट्यूशन क्लासेस में हेल्प कर सकते हैं, या पैसों के इसमें भी नहीं तो उसे बिठा के कुछ ना कुछ आप उसे सिखा सकते हैं, उसके मेंटल हेल्थ उसके फिजिकल हेल्थ में कुछ ना कुछ बात करने लगो। जब आप करने लगोगे ना तो बच्चा अगर सही बच्चा है तो जरूर आगे बढ़ के बोलेगा दीदी ने मुझे हेल्प किया था, जरूर बोलेगा कि ये दीदी ने, ये आंटी ने मुझे हेल्प किया था, मेरे एजुकेशन में आंटी ने मुझे हेल्प किया था। आप वो बच्चे को चॉकलेट दे दो, चॉकलेट दिए तो सब भूल जाएंगे, आप वो बच्चे को ड्रेसेस भी दे दो ना वो सब भूल जाएंगे, बट स्पेशली एजुकेशन में हेल्प करो ना। अभी भी मुझे याद है कि वन ऑफ माय रिलेटिव, माय फादर इन लॉ, ही गिफ्टेड मी अ डिक्शनरी, वो अभी भी मेरे पास है। दूसरे सब चीज मैं भूल गई, उन्होंने मुझे खाना लेके आते थे, उन्होंने मुझे स्नैक्स लेके आते थे, एवरीथिंग, माय फूफा, एंड ही हैज डन अ लॉट मोर। सब लोग सब बच्चों को करते, बट वो जो डिक्शनरी है ना, एवरी टाइम आई लुक एट द डिक्शनरी, एवरी टाइम आई रीड द डिक्शनरी, मुझे हमेशा वो याद आते हैं। एजुकेशन ना हमेशा हर इंसान को हर चीज में वो हेल्प करेगा। सो नॉट ओनली यू इवन अपग्रेड अदर्स। जब तक अपने बच्चों का बोलेंगे डू दिस डू दैट, डेफिनेटली दे आर नॉट गोना लिसन टू यू। जब बोलेंगे आप लेट्स डू इट टुगेदर, जब आप एक दिन आप किताब उठा के बैठ जाओ, वो दीनी इस्लामी किताब हो या कुछ भी किताब हो या करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, जब आप किताब उठा के बैठ जाओ ना, ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 वीक बच्चा कुछ ना कुछ तो किताब उठाएगा, इधर उसके रिविजन का हो या कुछ उसके एजुकेशन रिलेटेड हो या कुछ उसके स्टोरी बुक से कुछ ना कुछ रिलेटेड टू एजुकेशन जरूर करेगा। इफ यू वांट टू मेक चेंज, इफ यू वांट टू ब्रिंग चेंज, फर्स्ट चेंज योरसेल्फ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड a lot of girls I have seen, जब वो लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, जब बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, मैं अपने आप को फेलियर समझती हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको सीरियसली कुछ करना है ना, थोड़े लड़कियां बोलते हैं मेरे पास पैसा है बट क्या करना मुझे पता नहीं, बीएड एजुकेशन है, अगर आपको टीचर बनना है बीएड करो, हज सोसाइटी में वहाँ पे पीछे आपको एक इंस्टीट्यूट है, आपको वहाँ पे जाके इन्वॉल्व आप वहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको लर्निंग डिसेबिलिटी आप करना है, साइकोलॉजी डिग्री की जरूरत नहीं है, आपको लर्निंग डिसेबिलिटी डिप्लोमा कोर्स आप कर सकते हैं, ऑनलाइन डिप्लोमा कोर्सेज कितने सारे अवेलेबल हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड NPTEL, दिस सबकी ख्वाहिश होती है ना IIT से हमें सर्टिफिकेट मिले, IIT से मुझे कुछ हासिल करें। इन द सेम वे देयर इज समथिंग कॉल्ड NPTEL, ये कोर्सेज हैं जहाँ पे दे गिव 100 to 200 कोर्सेज, मोर देन 200 कोर्सेज आते हैं। आपको जो पसंद है आपको कर सकते, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो फ्री में सिखा रहे हैं। IIT पीपल, एक पर्सन 4 वीक्स कोर्स होता है, 8 वीक्स कोर्स होता है, 12 वीक्स कोर्स होता है, वो कोर्सेज करते हैं। बिकॉज फाइनल इफ यू वांट अ सर्टिफिकेट देन यू नीड टू पे 1,000 रुपीज, पूरा कोर्स का सिर्फ 900 समटाइम्स। इफ यू आर नॉट एबल टू पे, आप वहाँ पे वो लोग को मेल भी कर सकते हैं ताकि वो कंसिडर करेंगे, जब अगर आपके पास तकलीफ है तो सर्टेन क्राइटेरियाज है वो आप फुलफिल, आप वो क्राइटेरियाज आप एवरीथिंग आप उसमें पास हो जाए ना तो आप फ्री में भी हो सकते हैं। बहुत सारे कोर्स है, एंड इफ यू आर रियली गुड इन कंप्यूटर कोर्सेज बहुत सारे, एंड स्पेशली ये लॉकडाउन में ना इतने सारे इंस्टीट्यूट्स बाहर आए हैं जो बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें फ्री कोर्सेज देके। बिकॉज सिर्फ एक क्या चाहिए, इंटरनेट। अगर आप लड़कियां हैं, यूजुअली होता है ना कि कॉस्मेटिक्स लेते हैं हम लोग, ड्रेसेस लेते हैं, स्कार्फ लेते हैं, पर्दा लेते हैं, ड्रेसेस लेते हैं। अगर खुद के लिए कुछ करना है ना तो मंथली पैक डालो, मंथली डेटा पैक डाल के आप रिचार्ज करो, अनलिमिटेड पैक डालो और कुछ ना कुछ कोर्स जो है आप अपने आप को अपग्रेड करते रहो। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड शॉ अकेडमी, SHAW अकेडमी, वो ग्राफिक डिजाइनिंग 4 वीक्स कोर्स आपको फ्री में सिखाता है। बहुत सारे हैं, इफ यू गिव प्रायोरिटी, जब आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेंगे ना तो जरूर 100% यू कैन डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। एंड ग्राफिक एंड ऑनलाइन जॉब्स भी बहुत सारे हैं, डेटा एंट्री कोर्सेज हैं, डेटा एंट्री जॉब्स हैं। आपको सिर्फ एंट्री डाल के आपको एवरी डे लाइक 100 रुपीज या कुछ वीकली 300 या 400 मिल जाता है। कैसे लेके आना, अगर आपको एक चीज अगर हाथ में आ गई ना तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज आ सकता है। एंड देन द नेक्स्ट वन आई वांट टू, I will not take more time, I'll try to complete in 15-20 minutes, Habiba. Yes. Then skills development, first one, you need to boost your self-esteem, you need to be honest and you need to be open to yourself, और एक बहुत important है negativity is something, इफ यू आस्क मी, मैंने ऐसे लोगों को मेरे लाइफ में देखा है जो सामने से बहुत अच्छे से बोलते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु वियर मास्क, ओके, बोलते हैं कि अंदर एक होता है और बाहर से अलग पोर्ट्रे करते हैं। बहुत सारे पीपल हैं जो सामने ही नेगेटिव, इतना सारा नेगेटिव वाइब्स दिए हैं, बट डोंट बॉदर, ओके। अगर आपको सच में कुछ करना है ना, एक 20 पीपल हैं समझ लो आपके लाइफ में, 20 पीपल में
18 लोग होंगे who will stamp on you, who will put down your आपके legs को pull करेंगे, who will degrade you, but there will be only 2 people in your life जो angel की तरह आएंगे आपके लाइफ में, आगे बढ़ाएंगे, जब दे और फेरी की तरह आएंगे जो आपको मोटिवेट करेंगे। सिर्फ वो 2 लोग को आपको जहन में रख के आपको और आगे बढ़ना है। ओके, अगर कोई somebody who's feeling very jealous of you, which means that you are growing. Okay, if you see people वो बहुत jealous feel करते हैं but still they are copying, which means that you're growing. आपको जब बॉदर करना है, जब people stop following you, अगर आपको फॉलो करना स्टॉप करना है, तब भी आपको सोचना है कि मुझ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। Okay, that is why I told you, when you achieve something in your life, never feel proud, be down to earth to people, be service oriented, very important, and show appreciation to other women in your life, other women in your community. That is very important. There are so many women. I feel so happy. I see there are some there is a girl, there is a woman who had started a business, baking start किए हैं, बहुत सारे लोग टेलरिंग स्टार्ट किए। ऐसा नहीं कि टेलरिंग है तो वो एक अलग जॉब है, नो, एवरीथिंग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। व्हाई डोंट यू थिंक दैट वो कुछ ना कुछ मैं कुछ भी नहीं की? ये पर्सपेक्टिव में क्यों आप नहीं सोचते हैं? बेकिंग में है, थोड़े लोग स्कार्फ से करते हैं, थोड़े लोग क्लोथिंग में बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, थोड़े लोग कम्युनिकेशन में तो फ्री क्लासेस कर रहे हैं। इफ यू आर सीइंग समबडी हु इज गोइंग अहेड ऑफ यू, बी लाइक से टाइम टू गिव एंड एक्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, आगे बढ़ रहे हैं, ओके मुझे भी करना है, अब सोचो कि मुझे क्या बनना है, मुझे एस्पेक्ट में मुझे आगे बढ़ना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट कम्स इन द स्किल्स डेवलपमेंट इज देयर आर 2 aspects, there are 2 important categories. Number 1 is communication skill, number 2 is personality enrichment. Communication is very very, if your communication is really good, then please take some classes. There are so many orphans जहाँ पे बच्चे तरसते, एक क्लास कुछ भी नहीं। If you want to do something, just go there and take weekly once या मंथली ट्वाइस जाके कुछ क्लासेस करो, कैसे बात करना है, पर्सनल हाइजीन, अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, जाके बच्चों को सिखाओ। इतने अपने खुद के आपको, इसका ये मतलब नहीं कि आप रॉयपेटा में हैं तो आपको तांबरम जाना, पेरम्बूर में है तो आपको नहीं, आपके नेबरिंग, आपके बाजू, आपके एरिया में बहुत सारे ऑर्फनेजेस, बहुत सारे ओल्ड एज होम्स। पहले उस जमाने में 20th सर्जरी में देखेंगे ना तो आपको सिर्फ 1, 2 या 3 ऑर्फनेजेस दिखेंगे, बट आज के जमाने में देखेंगे ना, देयर आर ईच एंड एवरी एरिया हैज 1 ऑर्फनेज। ऑर्फनेजेस इतने बढ़ रहे हैं, एक ऑर्फनेज में खुदा हमारे लाइफ में ऐसे कभी हमने ऐसा पर्सनली ऐसा कभी ये नहीं आना है, बट एक ऑर्फनेज में जाते हैं 60 बूढ़े लोग रहते हैं, 70 बूढ़े लोग होते हैं, इतना दर्द होता है उनके आंख में, इतने इमोशनली वीक होके रहते हैं, उनको सिर्फ बात करना है। तो इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, गो टॉक टू देम, दैट दिस इज नोन एज वुमेन, दूसरों को जाके हेल्प, दूसरों की मदद करना। And personality enrichment, there are different criteria under personality enrichment. So number 1 is emotional intelligence. Know your own emotion, try to understand others' emotion, and never show off your happiness in front of a sad person. हमारे इमोशंस में कितना मैं चीख रही हूँ, मैं कितना बात कर रही हूँ, अगर मेरे इमोशंस, मेरे जज्बात दूसरों को हर्ट करें क्या, each and every answer you need to know this। अगर आप किसी को हर्ट नहीं करना, it's a blessing। Okay, emotional intelligence important. You can also, I don't have time to take this topic completely. There is a very famous person, Daniel Goleman. He talks about 5 components of emotional intelligence. Know your own emotion, try to understand your own emotion, keep motivating yourself, try to understand others' emotion. When all the 4 categories are really good, the 5th one is interpersonal intelligence. जब आप लोग आपसे बात करने लगेंगे, interpersonal intelligence, which means that आप में और उनमें अच्छे कनेक्शन, there is a win-win situation. So this is one. And और बहुत सारे विमेन एम्पावरमेंट में ये भी टॉपिक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड एंगर मैनेजमेंट। और बहुत सारे लोग में ये भी देखूं कि बहुत सारे रिलीजन में डिवोर्स रेट्स इतना बढ़ रहा है कि व्हाट इज द रूट कॉज, देखना सिंपल हो रहा है कि ईगो इश्यूज, ओके, अंडरस्टैंडिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, स्ट्रेस में इतना सारा स्ट्रेस होता है कि वो आगे बढ़ नहीं सकते, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, एंगर को अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। देयर आर सो मेनी एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स, यू नीड टू नो अबाउट इट। देयर आर सो मेनी स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम अपने बच्चों को बोलते हैं हमेशा आगे बढ़ो, कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा क्यों फेल हो रहा है एग्जाम में, हमारा बच्चा क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, बिकॉज देयर आर सो मेनी टेक्निक्स दैट द चाइल्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड, द चाइल्ड नीड्स टू नो स्टडी स्किल टेक्निक्स। इन द सेम वे अगर आपको स्ट्रेस बहुत है तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट, देयर आर डिफरेंट एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स। देयर इज, आई विल टच फ्यू टेक्निक्स। देयर इज समथिंग विजुअल इमेजरी। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठ के ड्राइंग करने लगोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतना अच्छा ड्राइंग क्या मैं करती हूँ, मैं स्कूल में ड्राइंग नहीं की ना, मैं कॉलेज में भी इतना अच्छा नहीं की ना, तो तब आपको पता चलेगा कि यस आई एम केपेबल, मुझे कुछ ना कुछ है। तो इफ यू रियली वांट, इफ यू फील दैट यू लव ट्रीज, इफ यू फील दैट यू लव बीच, आपको बहुत पसंद है, व्हाटएवर यू लव, आप ड्रॉ करके ना, आपके द मोमेंट यू एंटर इनटू हाउस, घर में जब एंटर होंगे तो आप चार्ट में ड्रॉ करके
स्टिक कर दीजिए। ओके, आपके मेंटल हेल्थ को ना आपके मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव करेगा। डिप्रेशन ना थोड़ा आपको कम होगा। एंड देन एंड देयर डोंट यूज द वर्ड डिप्रेशन। डिप्रेशन इज सम, इट्स एन इलनेस। ओके, इट्स एन इलनेस। दूसरे कैटेगरी में स्ट्रेस, हमेशा हर इंसान टेंशन में, स्ट्रेस एक 1 वीक रहता है या 3 डेज रहता है या 4 डेज होता है। हियर वी नीड टू बी ईदर प्रॉब्लम फोकस्ड और सॉल्यूशन फोकस्ड। There are few people who are problem focused and there are few people who are solution focused. आपने हमेशा आपके माँ बाप को देखे होंगे, हमेशा ये मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सोचते रहेंगे। प्रॉब्लम है सोचते रहेंगे ना, तो प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे। यू नीड टू बी सॉल्यूशन फोकस्ड। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर women empowerment. Be solution focused. Okay, I have this problem, accept it. Okay, मुझे लॉकडाउन है। आप बोलते हैं पोलम्बल बोलते हैं तमिल में, आप बोलते रहेंगे ना तो कुछ भी एक सोल्यूशन नहीं आएगा। ओके, मुझे लॉकडाउन है, बैठ के मुझे क्या करना है, अपनी फैमिली में क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। ओके, खुद के लिए आफ्टर 3 months मुझे रिग्रेट नहीं करना, मैंने कुछ नहीं किया है। अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, मेरे सेल्फ ग्रोथ के लिए, ओके, मेरे पर्सनल फुलफिलमेंट के लिए मुझे क्या करना है, राइट इट डाउन। अभी भी आपने कुछ नहीं किया, इट्स ओके। इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन लाइफ, इट्स ओके। ओके, लाइफ में हमेशा हर एक लाइफ में हर इंसान का टर्निंग पॉइंट आता है। तो मुझे अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है, आज से मुझे क्या करना है, हियर यू नीड टू फोकस ऑन। And another important part of stress management is there is something called aromatherapy. Rose, jasmine, sandalwood, lavender. इससे ना हमारे आपके नर्व्स काम करते हैं। ये जो लीव्स जो भी मैंने मेंशन किया है, aromatherapy works well for stress and anger. Visual imagery works well for stress and anger. Breathing techniques, keep yourself fit. Okay, बच्चे बोल रहे हैं कि अच्छा मम्मा ने बहुत अच्छा फिजिकली मेंटेन किया है, कीप योरसेल्फ फिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर अदर्स बट फॉर यू। खुद के लिए, खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए अपने आपको फिट करना है। एंड काउंट डाउन फ्रॉम बैकवर्ड 10 से 1 तक। व्हेन यू फील दैट यू आर स्ट्रेस्ड आउट, ओके, क्या करना है आपको, जस्ट सिट इन वन प्लेस, एक काम प्लेस में बैठ के 10 9 8 7 6 ऐसे काम करें। मैं अभी फास्ट जा रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स, देयर इज अ लॉट ऑफ विजुअलाइजेशन टेक्निक। ओके, कैथारसिस एक मेथड है वेयर यू वेंटिलेट योर फीलिंग्स आउट। ओके, दिस साउंड्स वेरी फनी। अगर आपको गुस्सा है, अगर आपको टेंशन है, अगर आपकी कुछ भी टास्क में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक अ पिलो एंड स्टार्ट पंचिंग एट द पिलो। स्टार्ट पंचिंग द पिलो। क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा जब भी हम गुस्सा होते हैं, तो हमारा फर्स्ट गुस्सा जो है हमारे हस्बैंड पे या समटाइम्स वाइफ पे, समटाइम्स घर पे जो भी फैमिली मेंबर है, समटाइम्स बच्चों पे हम लोग अपना गुस्सा निकालते हैं। बट स्टार्ट पंचिंग द पिलो, अपना आधा गुस्सा ना तो उसी पे चले जाएगा। देन थोड़ा बैठ के सोचिए कि प्रॉब्लम किस चीज से आया था, इस प्रॉब्लम में क्या गलती है, इस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है। एक बार आप सोचने लगोगे ना, तो डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट टाइम वो प्रॉब्लम जरूर आएगा। ईगो इश्यूज से बहुत सारे लाइफ ना, बहुत सारे फैमिलीज रुइन हो रहे हैं। एंड दिस वन, देन एंजाइटी इश्यूज भी, एंजाइटी बहुत सारे लड़कियां, बहुत सारे women जो है बहुत एंशियस होते हैं, उनको पैनिक अटैक आता है उनको। देन यू कैन यूज सच द अबव टेक्निक्स व्हिच आई मेंशन्ड देयर। एंड I want to end, I also have a question answer session, and I tell you, always remember, happy people focus on what they have and unhappy people focus on what is missing. Okay, हमेशा हमारी लाइफ में जो भी है उससे खुश रहना सीखो। खुदा आज हम खा रहे हैं, 3 टाइम नहीं 2 टाइम भी खा रहे हैं ना, खुश रहना सीखो। कुछ ना कुछ लाइफ में आएगा, बदलाव आएगा जरूर। एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन। हर इंसान का टाइम आएगा, इसमें अपना होप मत खोने बैठना। जब भी कुछ भी हो, be grateful to God, keep praying definitely, and go talk to your parents, talk to someone trustworthy. ये not necessary कि वो trustworthy आपके best friend हो, never trust anyone, maybe 1-2 people को आप trust कर सकते हैं, अपने secrets को share कर सकते हैं। if you feel that मेरा जो भी secret आप बोलेंगे जरूर बाहर निकलेगा, then avoid all that, talk to someone trustworthy जब आप करने लगेंगे। and ये कोड जब मैंने बोला कि हैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट दे हैव, अनहैप्पी पीपल फोकस ऑन व्हाट इज मिसिंग। अगर जो भी मेरे मिसिंग है, ये नहीं है, वो नहीं है, इफ यू कीप कंप्लेनिंग, जरूर अपनी लाइफ फुल आप अपने लाइफ को वेस्ट कर रहे हैं। जो भी है से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट गो अहेड। डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, आप हार्ड वर्क करते रहोगे ना, जरूर एक दिन ऐसा लगेगा कि आप स्टेज पे जाके जरूर बात करेंगे। एंड विद दिस आई विल एंड माय सेशन. I thank Habiba, Voice of Bibi Zainab alayhi salam, the entire group of Chennai girls for giving me this opportunity. Thank you so much, Habiba. If you have any questions, Habiba, you can ask me. Or if you have any questions, you can leave a message. Yeah, we have some questions, Didi. पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि how to build confidence in ourselves and self motivation. Okay, तो ये इसमें 2 हैं. First one, how to build self confidence, and the second one is
how to motivate yourself, self motivation. Yeah. For building self confidence, I'll tell you my own experience. मुझे 10th तक इतना फियर था, मैं बाहर जाके मैं बात नहीं कर सकती थी, मुझे स्टेज फियर था बहुत. मेरी मैम हमेशा बोलती है कि she always used to tell me, my teacher, my history geography teacher, social science teacher, Niloli ma'am, she used to tell me that, come out from the comfortable zone, get involved in challenging, take up challenging tasks. जो comfortable zone देगा ना, वो comfortable zone से तुम कुछ नहीं सीखोगी. जो चीज में तुम्हें डर है, वो डर को जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है. Then I started searching. मैं जब कॉलेज में तभी भी मुझे डर था बहुत. जब मैं प्रेजेंट करती थी, प्रेजेंटेशंस होते थे मेरे, जो भी इतना डरती थी, I was not able to give my 100%. Then after third year, I started asking myself, what is there, which is one part where I need to develop myself. Then I came across psychology, पढ़ रही थी ना, तो here and there थोड़े techniques भी होते हैं. There is something called self affirmation techniques. This will boost your confidence level. ये techniques ऐसा है कि आपको you have to go stand in front of the mirror and keep repeating few sentences. जाके मिरर में खड़ के मेरे बाल ठीक हैं क्या, मैं कैसे दिख रही हूँ, ये नहीं देखना है आपको. सिर्फ थोड़े things जो motivate कर, where you want to see yourself in the next 2 years, in the next 5 years. मुझे क्या करना है. I love my parents, I love myself, I respect my, first you give respect to you, that is very important. Okay, जब आप खुद को respect नहीं दोगे, then don't expect this from any other person. First you give respect to yourself. I want to succeed in my life, I want to become a speaker, I want to become more confident, I want to get good marks in my examination, I want to become a chartered accountant, I want to become a doctor. So you have to keep repeating few sentences in front of the mirror. Okay, not like 5 minutes नहीं, like how after brushing, जब आप देखते हैं, आप mirror में देखते हैं, तो एक positive energy दो खुद को अपने. Today I have to do something in my life, today I have to make something to other person, today I have to help other person. तो कुछ ना कुछ आप दूसरों के लिए करना चाहोगे ना, करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली खुद के लिए वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है. देन एंड वन मोर थिंग आई विल टेल यू, when you have any task, for example स्कूल के बच्चों को होता है, कॉलेज के बच्चों को होता है, स्टेज में जाके स्टेज फियर होता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है. what you have to do is prepare yourself, give 200% completely. first खुद में भरोसा लाके first prepare कर लो. थोड़ा सा भी ना अपने आप को वीक समझोगे ना, ऑटोमेटिकली वहां जाके क्या होता है कि हमारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, तो आप जब स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो आपको पैनिक अटैक आते हैं, तो आपको आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, यू स्टार्ट स्वेटिंग, योर प्यूपल स्टार्ट डाइल्यूटिंग. सो बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं. तो वहीं पे आप समझ लो कि आप सब चीज खो दियो. तो जस्ट इमेजिन, यस, मुझे नॉलेज वाइज एवरीथिंग आई नो, आई एम वेरी क्लियर. When you go up on the stage, just imagine there is nobody in front of you. Okay, maintain eye contact, here and there you talk. This is how I started. This will boost confidence in you. When you talk to others, when you talk on the stage, when you start talking on the stage, just imagine that the people who are sitting down, नीचे जो भी बैठे हैं, स्टेज में नीचे बैठे हैं, स्टेज के नीचे, ये समझ लो कि उनको कुछ नहीं आता है. Only you know better. बहुत सारे oratorical competitions होते हैं जहाँ पे हम लोग जाके बात नहीं कर सकते हैं. बहुत सारे competitions होते हैं कि डर से, fear से confidence level कम हो जाते हैं. Just imagine that वो लोग को कुछ नहीं आते. I know everything, they don't know anything. Okay? जब learn करेंगे उस time be a student always. Either it is religious thing or non-religious or any current affair, always be a student. A person is teaching you something. वहाँ पे जब एक इंसान बोल रहा है, ये मत देखो कि वो कौन इंसान बोल रहा है, ये देखो कि वो क्या बोल रहा है. ओके, बी अ स्टूडेंट ऑलवेज. तो ये ऐसे स्टेज में जाके आपको इमेजिन करना है आपको, ओके मैं जाने वाली हूँ. ऐसे होता है यूजुअली स्पोर्ट्स प्लेयर्स होते हैं ना, उनको कैसे ट्रेन करते हैं, वो जब ट्रैक इवेंट्स पे जाते हैं, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, जब हम लोग उनको काउंसलिंग देते हैं ना, तो वी टेल देम टू इमेजिन, ओके ये स्टेडियम है, तुम जा रही हो, भाग रही हो, बहुत सारे लोग चीयर कर रहे हैं, डोंट बॉदर अबाउट देम, तुम्हारा टास्क सिर्फ गोल पे होना चाहिए. तो ऐसे आपको इमेजिन करके आगे बढ़ना है. दिस इज वन पार्ट, दैट इज हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. देन आई मीन हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. सेकंड वन इज मोटिवेशन. मोटिवेशन जो एक छोटा सा वर्ड है, MOTIVATION, but there is a lot of meaning attached to it. There are two types of motivation. Basically, there is something called intrinsic motivation and there is something called extrinsic motivation. Extrinsic motivation is something where people will force you, people will appreciate you, your family members, your father, your mother, your neighbors, your teacher, दूसरे आपको मोटिवेट करोगे. मोटिवेट करने से, this extrinsic motivation works only to an extent.
if you really want to see some changes, and if you really want to come up in your life, you have to be intrinsically motivated. It's a force that drives you to do something. कुछ ना कुछ करके दिखाना, अगर ये आ गया ना तो कोई भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता. You can reach anything. जब तक अपने आप को आप खुद से अंदर से आप ड्राइव नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. I want to share one small story here for सेल्फ मोटिवेशन. ओके, स्टोरी ये है कि एक बस में एक ड्राइवर एंड कंडक्टर होते हैं. वो ड्राइवर कंडक्टर एक ही अपनी लाइफ में 15 साल से एक ही साथ चलते आते हैं. देन ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब एक स्टॉप में एक पठान चढ़ता है, चढ़ के राइट, पठान लोग ऊंचे हेफ्टी होते हैं तो आड़े चौड़े रहते हैं, तो समटाइम्स देख के उनसे थोड़ा डर लगने लगता है कि देख के फिजिकल अपीयरेंस उनका वैसे होता है. तो जो कंडक्टर था 15 साल से आराम से बस में वही एमटीसी वही ऑक्यूपेशन में रहते हैं. तो कंडक्टर जो है शॉर्ट रहता है, उनका हाइट जो है 4.5 या 5 फीट होता है. तो क्या होता है, वो पठान बराबर ठीक से एक स्टेशन एक बस स्टॉप पे चढ़ता है, तो जाके वो अपनी सीट पे बैठ जाता है. वो जाके कंडक्टर जाके पूछता है कि टिकट ले लो. तो पठान जवाब देता है कि मैं टिकट नहीं लेता. पठान लोग टिकट नहीं लेते. अगेन वही होता है कि नेक्स्ट डे भी यही होता है कि टिकट ले लो बोलता है. कौन कंडक्टर टिकट लेने के लिए पूछता है, पठान बोलता है टिकट नहीं लेता मैं. ऐसे ही चलता है 10 दिन. देन बिकॉज वो जो कंडक्टर अपने आप को बहुत वीक समझता था, बिकॉज वो कुछ नहीं बोलता. यूजुअली होता है ना कि कंडक्टर के पास अब टिकट नहीं लेते तो दे स्टार्ट शाउटिंग. ऐसा कैसे होता था, वो नीचे उतार देंगे आपको बस से. बट वो इतना वीक समझता था कि वो बोल नहीं सकता था कुछ, बिकॉज वो कुछ नहीं कर सकता. वो एक मार्क से वो नीचे भी गिर सकता है. तो व्हाट हैपेंस वाज, वो क्या करता है, कंडक्टर अपनी लाइफ को कुछ बदलाना चाहता है, तो वो क्या करता है, तो 3 महीने का ब्रेक लेता है, ड्राइवर को बोलता है और एक उनके ऑफिसर्स को लेटर लिखता है कि मुझे लीव चाहिए 3 महीने का. 3 महीने में क्या करता है, वो एक अलग प्लेस जाता है, वो अपने आप को बिल्ड करने लगता है. ओके, अपने आप को बिल्ड करने लगता है, फिजिकली अपने आप को अच्छा बिल्ड कर लेता है. टेकिंग पार्ट इन सेल्फ डिफेंस, कराटे, सब चीज अच्छा खाता है पीता है. वो भी अच्छा हाइट में तो बढ़ नहीं सकता है, बट बॉडी बिल्डिंग सब करके जिम जाके अच्छा 3 मंथ्स फुल ट्रेनिंग में होके आता. 3 महीने के बाद वो लोग कोई पहचान नहीं पाते हैं कि वही क्या कंडक्टर, वही सेम कंडक्टर है क्या. तो अगेन क्या होता है, वो अपना जॉब ज्वाइन कर लेता है. वो जाके पठान के पास पूछता है टिकट. अभी अब तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, बिकॉज प्रीवियसली क्या होता है, वो अपने आप को वीक समझता है, बिकॉज ही नोज कि उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है. जो चीज में मुझे आगे बढ़ना है, जो चीज मुझे ओवरकम करना है, वो नहीं है. तो अभी जाके पठान के पास एक लाउड वॉइस से पूछा टिकट ले. तो पठान बोलते हैं पठान के पास बस पास है. तो पठान के पास बस, ये बहुत छोटी एक जोक है ये एक्चुअली. मैं क्या बोल रही हूँ, स्टोरी से एक चीज तो जरूर आप सीखेंगे. ओके, एक चीज क्या है, मॉरल क्या है, जब तक वो आप एक सिचुएशन में आप एंटर नहीं होंगे तब तक अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी आप समझ नहीं पाएंगे. ओके, जब तक आप रिजेक्शन नहीं आएंगे आपके लाइफ में, जब तक आपके लाइफ में फेलियर्स नहीं आएंगे, तब तक अपने सेल्फ वर्थ को आप जान नहीं पाएंगे. अगर उसके लाइफ में पठान मिला, अगर पठान नहीं मिला, क्या समझता था अपने आप को, एक नॉर्मल पर्सन ही समझता था. बट वो पठान को मिलके अपने आप को खुद, वो एक्चुअल स्टोरी वो अंडरस्टैंड नहीं किया था, उसे बस पास कभी पूछा नहीं था, बट वो क्या समझ गया, उसके साथ लड़ने के लिए मुझे अपने आप को, बॉडी को बिल्ड करना है. जब आप खुद को, अपने आप को पॉजिटिव, अपने स्ट्रेंथ्स को जगाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली थ्रू ट्रेनिंग, ऐसा नहीं है कि हम लोग बॉर्न, ये स्ट्रेंथ्स जो है, हमारी जो स्किल्स हैं, ये सब जेनेटिक्स, समटाइम जेनेटिक्स से होता है. थोड़े बच्चे जो है कि पैदाइशी अच्छे स्पीकर है, थोड़े बच्चे पैदाइशी अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्रिएटिविटी में अच्छे होते हैं, थोड़े बच्चे स्किल से डेवलप कर लेते हैं. थोड़े स्किल से भी आप बहुत चीजें आगे बढ़ सकते हैं. So this is intrinsic motivation. You have to drive something. The drive instinct है ना, खुद से वो आना चाहिए. अगर वो हो गया ना, and you take PUBG, जो भी बच्चा PUBG खेलता है, क्या आप वो बच्चे को बोलते हो PUBG खेलो? नहीं, ऑटोमेटिक उससे इंटरेस्ट है. You give priority to something. If you start giving priority to something, some short term goals, 3 दिन का गोल बनो, 4 दिन का गोल बनो. जब आप इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दोगे ना, then automatically you are motivated. You can read a lot of stories. Don't read successful stories, read failure stories. You read Dr. APJ Abdul Kalam, बहुत सारे, Malala Yousafzai, बहुत सारे speakers हैं. You watch Josh Talks, you watch TED Talk, टेड स्पीकर्स जो होते हैं, उनके लाइफ की स्टोरीज देखो, तब उसमें से आप जरूर जो हर्डल्स वो लोग पार करके आए हैं, उसमें से बहुत सारे आपको स्टोरीज. दिस इज व्हाट आई डिड. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मैंने ये पढ़ा है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल रही हूँ आपको. यस अभी दी वी हैव मोर क्वेश्चंस, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं इधर 2 क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन की तरह आपको पूछ लूंगी. सो द क्वेश्चन इज हाउ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड व्हाट आर योर सक्सेस एंड फेलियर्स इन लाइफ. सो आप इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं. ओके जी. हाउ टू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर? नथिंग.
खुद को, अपने आप को समझो, गिव इम्पोर्टेंस टू योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। ओके, कुछ ना कुछ दूसरों के लिए आप सोचने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली यू विल बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम्स, व्हेन यू सी देम यू नो कितना तकलीफ में है, यू गो, छोटे से स्टार्ट होता है। ओके, जब मैं पीजी में कर रही थी, जाके वो बच्चों के सामने बातें करने लगी थी, तो बच्चे बोलते हैं कि दीदी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जल्दी और नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट टाइम। जब वेट करने लगते हैं तब आप सोचने लगते हैं कि ओके मैं कुछ बोली हूँ कि उसके लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। ऐसे ही लाइफ में स्टार्ट होता है। एंड अपॉर्चुनिटीज जो भी जब आपके लाइफ में आएंगे, वो जाके आपको स्ट्रीट्स में बात करना हो, या कोई स्टेज पे बात करना हो, या कोई कॉन्फ्रेंसेस में जाके बात करना हो, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटी जो भी आएंगे ना, एक्सेप्ट कर लेना। ओके, आपको बोल सकते हैं कि थोड़ा बात करो, छोटे छोटे अपॉर्चुनिटीज आपको महफिल में बात करना है तो गो टॉक, वहीं से आप ना मोटिवेट होंगे। जब बात करने लगेंगे, जब अपॉर्चुनिटीज आप उठाने लगेंगे ना, जब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप सामने आगे बढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो, इफ यू रियली वांट टू नो more things about it, then please leave a message to me on my WhatsApp number. You can follow me on Facebook and Instagram. Instagram में सिर्फ last month आई थी, Facebook I'm very active on Facebook. You can leave your messages to me. I will answer all the questions. And life में success and failures, मैंने बहुत सारे फेलियर्स देखे मैंने लाइफ में। जब तक आपके लाइफ में आप फेलियर्स नहीं देखेंगे ना, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। ओके, जब तक आपके लाइफ में आप रिजेक्शंस नहीं देखेंगे ना, तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। जस्ट बिलीव इन गॉड। एक दिन जब कुछ आपको हासिल हुआ है ना, खुदा चाहता है कि आपको ये पहुंचे। जब आपको हासिल नहीं हुआ है ना, जब खुदा चाहता है कि आपको नहीं पहुंचे, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ द रिजेक्शन। फेलियर्स, मेरे 2 फेलियर्स बहुत क्या बोलते हैं, ये 2 फेलियर जो मेरे लाइफ में बहुत टच हुए हैं। द फर्स्ट फेलियर इज व्हेन आई वाज इन स्कूल। आई अटेंडेड अ प्रोग्राम, एक फंक्शन में अटेंड की थी जहाँ पे मेरे मॉम, मेरे अम्मी, सब लोग थे वो प्रोग्राम में, कम्युनिटी पे सब लोग थे। देन अ पर्सन वाज आस्किंग क्वेश्चंस, यू नो, एक 20 लड़के, 15-20 लड़कियां थे, जहाँ पे 7 लड़कियों ने अच्छा टक 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 जवाब दे दिया था। देन मेरा टर्न आया था, तब आई वाज नॉट एबल टू आंसर। तब उस टाइम पे एक इंसान ने मुझे बोला था कि आलिमा नाम रख के फायदा नहीं, आलिमा का नाम का असर भी होना चाहिए। देन शी टोल्ड मी दैट इन फ्रंट ऑफ माय अम्मी। माय मॉम फेल्ट वेरी बैड। तो तब उस वक्त मैं अपने आप को बहुत फेलियर समझने लगी थी। तब उस वक्त मैं बोली कि क्यों मुझे ऐसा फील करी, मुझे भी कुछ ना कुछ करना है। मेरा नाम से आई नेवर फील कि मैंने ये हासिल किया, वो हासिल किया है। द नेम सेज दैट द मोस्ट लर्नड पर्सन। कुछ ना कुछ करना है, दीन में करना है, दुनिया में भी कुछ करना है, दूसरों को आगे बढ़ाना है, खुद को नहीं दूसरों को। बहुत सारे वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज में सबको आगे लेके आना है। अल्हम्दुलिल्लाह, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, बहुत सारे लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, यू नो, लैक्स ऑफ adolescents, teenage girls and boys, you know, got benefited from my programs. बहुत सारे volunteers, मेरे बाद बहुत सारे, you know, NGO start हुए हैं। I'm guiding them. This is what is success to me. Coming back to the failure, वो failure था, मेरे अम्मी को बहुत hurt हुआ था उस टाइम पे। You know, I wanted to, failure से, इसमें भी 2 टाइप की लड़कियां होते हैं। एक लड़की क्या समझती है, failure है तो चलो हो गया, you know, मेरा सेल्फ वर्थ कुछ नहीं है, मैं अपने आप को कुछ नहीं कर सकती। और एक लड़की है लाइक मी, चलो लेट मी डू समथिंग। ओके, मेरे में कुछ गलती है, मेरे में कुछ बुराई है, मेरे में कुछ वीकनेस है, सो लेट मी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। ओके, व्हाट आई शुड लर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उसमें मैंने थोड़ा फोकस करने लगी थी। तो मेरा एक हुआ था। देन कॉलेज में आई वांटेड टू गेट इनटू मेडिसिन। दिस इज माय सेकंड फेलियर। I wanted to get into medicine, but मेरे मार्क्स जो है 73% आए थे। तब my father wanted me to get into, मेरे बाबा बोले इंजीनियरिंग में ही करना है। तो उस टाइम पे मैं अपने आप को इतना फेलियर समझी कि मुझे मेडिसिन नहीं करना, बिकॉज मुझे बचपन से डॉक्टर होने का बहुत ख्वाहिश थी। देन उसके बाद सोची कि ओके मैंने फेल हो गई, आई वांटेड टू गेट मोर देन 85%, 73% ही हुए थे। इतने सारे लोग थे, जब मुझे डीग्रेड इतना सारा पढ़ती थी, क्या इतना ही ले पाई क्या, 73 ही ले पाई क्या, बिकॉज इतना सारा, बिकॉज आई डोंट नो, बिकॉज खुदा चाहता था कि मुझे इतना ही लेना है। देन बहुत सारे पीपल नेगेटिव से बात किए थे, थोड़े लोग मोटिवेट भी किए थे। माय मॉम इज लाइक चिल टाइप, आई एम हियर, it's purely because of my mom, my husband, my father, my brother, my son, my mother-in-law, मेरे सास हमेशा हर मोड पे मुझे उनका हेल्प था मुझे। Then I started telling myself, okay, मुझे मेडिसिन नहीं है, so let me do something related to पैरामेडिकल कोर्स में मैं जाती हूँ, मुझे क्यों ना मुझे ब्रेन के बारे में मैं पढ़ूँ। देन ऐसे ही हुआ था कॉलेज का एडमिशन, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने मना करके, उसका एक अलग स्टोरी है, अगर स्टार्ट करूंगी ना तो जाएगा लाइक हाफ एन आवर 1 आवर जाएगा। देन SIT कॉलेज में जाके मैंने एडमिशन, मुझे साइकोलॉजी की स्पेलिंग भी मुझे पता नहीं थी, आई रोट CYCOLOGY, मैंने जोश टॉक्स में भी मुझे मेंशन किया था।
तो देन वहाँ पे मेरी संस्कृत मैम थी, देन अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मैंने मेरा कंप्लीट किया था. सो एक फेलियर से भी कुछ ना कुछ हासिल हो सकता है. द वे वी टेक इट, द वे वी परसीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द सक्सेस इज मेरे सक्सेस मैं अभी ये प्रोग्राम में बात कर रही हूँ, इट्स ये मेरे लाइफ का बहुत बड़ा सक्सेस है, बिकॉज दूसरे लड़कियों को मोटिवेट कर रही हूँ. दिस इज ये मेरा सक्सेस है. मेरे मॉम डैड देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड कहीं पे देख के एक स्माइल लेके आ रहे हैं. दिस इज वन सक्सेस. व्हेन आई रिसीव्ड अवार्ड्स, अब्दुल कलाम अवार्ड मुझे मिला था 2020 में, ये अभी जैन में मिला था. अब्दुल कलाम अवार्ड 24 में एजुकेशन एंड सोशल वर्क कैटेगरी. देन आई रिसीव्ड आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, तब मुझे ये मेरा सक्सेसफुल सक्सेस है. देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे मैंने अभी बात की थी रिसेंटली 2 weeks बैक, वॉइस ऑफ एशिया, जहाँ पे मैं इंडिया को रिप्रेजेंट की. द मोमेंट आई सेड आई एम फ्रॉम इंडिया, आलिमा ज़हरा, यूजुअली होता है ना एक हमेशा मैं आलिमा ज़हरा फ्रॉम पेरम्बूर, आलिमा ज़हरा फ्रॉम चेन्नई बोल के, यहाँ पे आलिमा ज़हरा फ्रॉम इंडिया जब मैं बोली थी तो मुझे बहुत एक प्राइड था, मुझे एक अलग एक जुनून था, अलग एक मैं बहुत मोटिवेट हुई थी. 1 person केम फ्रॉम सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, ऐसे 6 to 7 people के साथ मैं बैठ के बात की थी, एजुकेशन पर्सपेक्टिव के बारे में बात की थी पोस्ट लॉकडाउन. तो दैट इज वन सक्सेस टू मी. थैंक यू हबीबा फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत खुशी हो रही है बोलते वक्त, मुझे शेयर करते वक्त. जी, Jazakallah, mashallah, Alima Di. I would like to thank Sister Alima Zahra for joining us and sharing her valuable thoughts on making this session a great success. I'd also like to thank all the participants on behalf of WOS team and would like to expect the same gathering in the upcoming events. I would now request Sister Fiza Fatima to end the session with Dua Faraj. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyaka Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala abaihi fi hazihi sa'ati وفي كل ساعة وليا وحافظا وخيرا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتيه فيها طويلا. Muhammad Ajal Faraj. Translation. O Allah, be for your representative, Al-Hujjah, the son of Al-Hasan. Your blessings be upon him and on his forefathers, now and at all times protector, guardian, leader, helper, guide and watcher, so that you shall allow him to prevail on your lands willingly and you shall make him enjoy it for a long time. Jazakallah. Jazakallah, mashallah.